अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। काश विच बनारस है रब आया, महिमा उसदी किंज बयानिया, बाणे हर दे रंग विच रंग दींदा, ओदी अज़मत दी की मिसालिया, ओदे करिश्मे ने जग ते सदा कामिल, रहमत उसदी दमे आखिर ने उदिया जानी, सिफता केड़ी मैले ज़बान आखां। ए सिफता ए सिफता ए सिफता गुरु रविदास दिया, ए सिफता ए सिफता ए सिफता गुरु रविदास दिया, ए सिफता 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 गुरु रविदास दिया, ए सिफता ए सिफता ए सिफता गुरु रविदास दिया। Baba ji, Sanshri Nirmal ji, Madam Santosh, Principal Ma'am Mr. Jitendra Kaur, teachers and all my fellow friends. We also welcome our special guests from UK, members of Kranti TV, Divana ji, Pradeep Raja ji, Gaurav, Gurmeet Singh, Harminder Kaur, Reema, Upinder and Jason. First of all, I would like to call the students of grade 9, Gurpreet, Harshdeep, Ritu and Jaskaran to recite a Shabad. Ram
to distribute prizes to the students of many events like handwriting and coloring contest, GK test, Mata Gujari Khalsa College students who participated last year in the inter-school competition in different events, and also distribute school blazers to the fatherless students of our school, and we are also going to celebrate birthday of Jason. We would like to invite respected Babaji, Santosh Ma'am, and one special guest from UK, Mr. and Mrs. Sohar, to give school blazers to the fatherless students. National Handwriting and Coloring Contest 2018 was organized by Students Development Society, Aurangabad, Maharashtra, and 47 students of our school had participated in that competition, and they have sent certificates of participation for all those students who had participated. So now I am going to call all those students one by one on the stage to collect their certificates of participation. Coloring competition. He has awarded the Kala Ratna Award 2018 for his excellent coloring in National Contest 2018. Congratulations, very much. Mr. Gurcharan sir, one of our senior teachers, to be on the stage and to just receive Saropa from Babaji. He has served in our school for minimum 8 years. So along with Gurcharan sir, I would like to invite the whole staff members, all the staff members, to please come on the stage to give honor to our dear sir. As today is going to be his last day in the school, though his services will not be over, he'll keep coming to motivate our students and to help us in one way or the other. I would like to call Gurcharan sir along with all the staff members. Baba Nirmal Das ji, Santosh Madam, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਏ ਗਏ। ਘੇਰਾ ਫੇਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਪਿੱਛੇ ਆਦੀ ਹੈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦਲ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ 2006 ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆ। ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਾੜੀਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਈਂਡਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਦੇ ਕਰਨਾ सरदार गुरचरण सिंह जी जो लास्ट 8 ईयर तो SGRD पब्लिक स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ SGRD ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ UK ਤੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਓ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਨ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ। राजधानी दिल्ली रात के 12 बजे थे। रात का सन्नाटा और अचानक दिल्ली, मुंबई, नागपुर में चारों ओर फोन की घंटियां बज उठी। राजभवन मौन था, संसद मौन थी, राष्ट्रपति भवन मौन था। हर कोई कश्मकश में था। शायद कोई बड़ा हादसा हुआ था। यह किसी बड़े हादसे या आपदा से कम नहीं था। कोई अचानक हमें छोड़कर चला गया था, जिसके जाने से करोड़ों लोग दुख भरे आंसुओं से विलाप कर रहे थे। देखते ही देखते मुंबई की सारी सड़कें भीड़ से भर गई। पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी मुंबई की सड़कों पर, क्योंकि पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था और अंतिम संस्कार भी मुंबई में ही होना था। नागपुर, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, पुणे, नासिक और पूरे देश से मुंबई आने वाली रेलगाड़ियों और बसों में बैठने को जगह नहीं थी। सब जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहते थे और देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जनसागर से भर गई। कौन था यह शख्स जिसके अंतिम दर्शन की लालसा में जन सैलाब रोते बिलखते मुंबई की ओर बढ़ रहा था?
देश में यह पहला प्रसंग था जब बड़े बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चों जैसे छाती पीट पीट कर रो रहे थे। महिलाएं आक्रोश कर रही थी और कह रही थी, मेरे पिता चले गए, अब कौन है हमारा यहाँ। चंदन की चिता पर जब उसे रखा गया तो लाखों दिल रुदन से जल रहे थे। अरब सागर अपनी लहरों के साथ किनारों पर थपकता और लौट जाता, फिर थपकता, फिर लौट जाता। शायद अंतिम दर्शन के लिए वह भी जोर लगा रहा था। चिता जली और करोड़ों लोगों की आंखें बरसने लगी। किसके लिए बरस रही थी ये आंखें? कौन था इन सब का पिता? किसकी जलती चिता को देखकर जल रहे थे करोड़ों दिलों के अग्निकुंड? कौन था यह जो छोड़ गया था इनके दिलों में आंधिया? कौन था वह जिसके नाम मात्र लेने से गरज उठती थी बिजलियां, मन से मस्तिष्क तक दौड़ जाता था ऊर्जा का प्रवाह? कौन था वह शख्स जिसने छीन लिए थे खाली कासे इनके हाथों से और थमा दी थी कलम लिखने के लिए एक नया इतिहास? आंखों में बसा दिए थे नए सपने, ओठों पर सजा दिए थे नए तराने, धमनियों से प्रवाहित किया था स्वाभिमान अभिमान को, दास्यता की जंजीरें तोड़ने के लिए दिया प्रज्ञा का शस्त्र। चिता जल रही थी अरब सागर के किनारे और देश के हर गांव के किनारे में जल रहा था एक स्मशान। हर एक शख्स की आंखों में और दिल में भी जो नहीं पहुंच सका था अरब सागर के किनारे, एक टक देख रहा था वह उसकी प्रतिमा या गांव के उस झंडे को जिसमें नीला चक्र लहरा रहा था, या बैठा था भूख प्यास भूल कर अपने समूह के साथ उस जगह जिसे वो बुद्ध विहार कहता था। क्यों गांव शहर में सारे समूह भूखे प्यासे बैठे थे उसकी चिता की आग ठंडी होने का इंतजार करते हुए। कौन सी आग थी जो वह लगाकर चला गया था? क्या विद्रोह की आग थी या थी वह संघर्ष की आग? भूखे नंगे बदनों को कपड़ों से ढकने की थी आग? असमानता की धज्जियां उड़ाकर समानता प्रस्थापित करने की आग? चवदार तालाब पर जलाई हुई आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही थी। धू धू जलती मनुस्मृति धुएं के साथ खत्म हुई थी। क्या यह वह आग थी जो जलाकर चला गया था? वह सारे ज्ञानपीठ, स्कूल, कॉलेज मरुभूमि जैसे लग रहे थे। युवा युवतियों की कलकलाहट आज मौन थी। जिन्होंने हाथ में कलम थमाई, शिक्षा का महत्व समझाया, जीने का मकसद दिया, राष्ट्र प्रेम की ओतप्रोत भावना जगाई, वह युगंधर, वह प्रज्ञा सूर्य काल के कपाल से ढल गया था। जिस प्रज्ञा तेज ने चेहरे पर रोशनियां बखेरी थी, क्या वह अंधेरे में गुम हो रहा था? बड़ी अजीब कश्मकश थी। भारत का महान पत्रकार, अर्थशास्त्री, दूरदृष्टा क्या दृष्टि से ओझल हो जाएगा? सारे मिलों पर ऐसा लग रहा था जैसे हड़ताल चल रही हो। सुबह शाम आवाज देकर जगाने वाली धुआं भरी चिमनियां भी आज चुपचाप थी। खेतों में हल नहीं चला पाया किसान। क्यों? सारे ऑफिस, सारे कोर्ट, सारी कचहरियां सूनी हो गई, जैसे सूना हो जाता है बेटी के विदा होने के बाद बाप का आंगन। सारे खेतीहर मजदूर, किसान असमंजस में थे। ये क्या हुआ? उनके सिर का छत्र छीन गया। वह जो चंदन की चिता पर जल रहा है, उसने ही तो जलाई थी जबरान जोत। मजदूर आंदोलन का वही तो था आधुनिक भारत में मसीहा। सारी मिलों पर होती थी जो हड़ताल आंदोलन अपने अधिकारों के लिए, उसकी प्रेरणा भी तो वही था जिसने मजदूरों को अपना स्वतंत्र पक्ष दिया और संविधान में लिख दी वह सभी बातें जिन्होंने किसानों, खेतीहारों, मजदूरों के जीवन में खुशियां बखेरी थी। इधर नागपुर की दीक्षा भूमि पर मातम पसरा था। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए। आधुनिक भारत का वह सपुत्र जिसने भारत में लोकतंत्र का बीजारोपण किया था, जिसने भारत के संविधान को रचकर भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया था, हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया था, वोट देने का अधिकार देकर देश का मालिक बनाया था। क्या सचमुच वह शख्स नहीं रहा? कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। लोग कह रहे थे, अभी तो यहाँ बाबा की सफेद गाड़ी रुकी थी, बाबा गाड़ी से उतरे थे सफेद पोशाक में, देखो अभी तो बाबा ने पंचशील दिए थे। 22 प्रतिज्ञाओं की गूंज अभी आसमान में ही तो गूंज रही थी। वो गूंज शांत होने से पहले बाबा शांत नहीं हो सकते। भारत के इतिहास ने नई करवट ली थी। जनसैलाब मुंबई की सड़कों पर बह रहा था। भारतीय संस्कृति में तुच्छ कहलाने वाली नारी, जिसे हिंदू कोड बिल का सहारा बाबा ने देना चाहा और फिर संविधान में उसके हक आरक्षित किए, ऐसी माँ बहनें लाखों की तादाद में स्मशान भूमि पर थी। यह भारतीय सड़ी गली धर्म परंपराओं के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था, क्योंकि जिन महिलाओं को स्मशान जाने का अधिकार भी नहीं दिया, ऐसी 3 लाख महिलाएं बाबा के अंतिम दर्शन को पहुंची थी, जो अपने आप में एक विश्व विक्रम था। भारत का यह युगंधर, संविधान निर्माता, प्रज्ञा तेज, प्रज्ञा सूर्य, महासूर्य, कल्प पुरुष नव भारत को नवचेतना देकर चला गया।
एक ऊर्जा स्रोत देकर, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का पाठ पढ़ाकर उस प्रज्ञा सूर्य की प्रज्ञा किरणों से रोशन होगा हमारा देश, हमारा समाज और हम। और पूरे विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे हाथों में हाथ लिए, मानवता के रास्ते पर, जहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होगा, जहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होगा, जहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होगा। याद करना नम दे नाल 1 मिनट का मौन रख के प्लीज सारे बच्चे और स्टाफ 1 मिनट वास्ते अपना मौन रख के उन्होंने श्रद्धा सुमन भेंट करें। जय भीम जय भारत।